Good morning, students. Today we'll be looking at the chapter of time value of money. As we have studied earlier and we have discussed earlier in last lecture that what is time value of money, what are its formula. In today's lecture, we will focus on the numericals done in this chapter of time value of money. Okay, let's take a look at the chapters. So here is your numerical part of this chapter of time value of money. So let's start with this. The first part, the first topic which we studied in time value of money was future value. So we remember what was the formula of future value? The general form of equation for calculating the future value of a lump sum amount after n number of periods is written as F is equals to P into 1 plus I power n, where F is the future value, P is the present value, I is the rate of return, and n is the number of years or number of periods. In some books, you will find that I is represented as R, so don't get confused there. So here in this future value, the term 1 plus I power n is the compound value factor, that is CVF, of a lump sum of rupees 1, and it always has a greater value than 1. For positive I, indicating that compound value factor increases as I and n increases. तो फ्यूचर वैल्यू में आपने फॉर्मूला देखा f इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आई पावर n, जहाँ पे f आपका फ्यूचर वैल्यू है, p प्रेजेंट वैल्यू है, एंड i आपका रेट ऑफ रिटर्न है, n इज द नंबर ऑफ ईयर्स. अब इस इक्वेशन में ये जो आपका पोर्शन है 1 plus I power n, it is collectively called compound value factor. एंड इसकी वैल्यू हमेशा 1 से अबव रहती है अगर हम ये मान के चलें कि I की वैल्यू पॉजिटिव है. तो जैसे जैसे I की वैल्यू इंक्रीज करेगी n की वैल्यू इंक्रीज करेगी, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न एंड नंबर ऑफ ईयर्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी, आपके कंपाउंड वैल्यू फैक्टर की वैल्यू भी 1 से अबव जाएगी. उस केस में आपका फॉर्मूला हो जाता है F इज इक्वल्स टू P इंटू CVF NI, मतलब future value is equals to present value into compound value factor at n number of years and I rate of return. So let's take a look at an example. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. You have deposited rupees 55,650 in a bank which was paying 15% rate of interest on a 10-year time deposit. How much the deposit will grow at the end of 10 years? तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें गिवन है. सबसे पहले तो आपका अमाउंट गिवन है, यानी P गिवन है विच इज़ 55,650, 55,650. I is also given 15% rate of interest, and N is also given 10-year time deposit. When you will check the value of compound value factor in a compound value factor table, you will find it is 4.046.
तो देन you will multiply 55,650 into compound value factor at 10 years and 12%, and you will get the answer of 225,159.90 rupees. तो अगर आप 55,650 बैंक में जमा कर रहे हैं 15% रेट पे अगले 10 सालों के लिए, तो 10 साल बाद आपका टोटल अमाउंट, विड्रॉएबल अमाउंट 225,159 होगा. दिस वॉज द टेबल मेथड. द नेक्स्ट पार्ट वॉज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी. अभी हमने पिछला जो क्वेश्चन किया दैट वॉज बिलोंग टू द पार्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ लमसम. लमसम का केस तब होता है जब सिंगल अमाउंट गिवन होता है. ओके, तो दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ लमसम अमाउंट, एंड इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फॉर्मूला ऑल्सो. यही बेसिक फॉर्मूला आपके ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस में लगेगा. The next is future value of annuity. Annuity is a fixed payment or receipt each year for a specified number of years. तो एन्युटी का मतलब यह है कि जब आप हर साल फिक्स्ड अमाउंट में पेमेंट करते हैं या फिर पेमेंट रिसीव करते हैं. If you do the payment or you receive the money or amount each year for a specified number of years, then it is called annuity. इस केस में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है? F इज इक्वल्स टू A इंटू 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 अपॉन I, where I is the rate of interest and n is the number of years and A is the amount, annuity amount, जो कि आप हर साल या तो जमा कर रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं. The term within brackets is the compound value factor of annuity. This term of bracket is combinedly called compound value factor for annuity of rupees 1, which we will refer as CVFA. तो उस केस में आपका फॉर्मूला हो जाता है F is equals to A into CVFA at n number of years and I rate of interest. तो आपके पास दो ऑप्शन है क्वेश्चन को करने के. अगर आपको टेबल नहीं मिल रही है, फैक्टर टेबल नहीं मिलती है, तो आप कैलकुलेटर मेथड से क्वेश्चन करेंगे और तब आप फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल्स टू A, दैट इज अमाउंट, इनटू 1 प्लस I पावर n माइनस 1 अपॉन I, where F is the future value, A is the annuity amount, I is the rate of interest and n is the number of years. And if you get the factor value table, if you find factor value table at exam, then you will use the formula F is equals to A into compound value factor of annuity at number of years and I rate of interest. Now look at the example. Future value of an annuity example. A firm deposits rupees 5,000 at the end of each year for 4 years at 6% rate of interest. How much annuity this will accumulate at the end of 4th year? तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक फर्म हर साल के एंड में 5,000 रुपये जमा करती है बैंक में, जिस पे उसको 6% रेट मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और 4 साल के बाद टोटल अमाउंट कितना एक्यूमुलेट हो जाएगा. तो जब आप कंपाउंड वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी की वैल्यू फैक्टर टेबल में ढूंढेंगे तब आपको टोटल वैल्यू मिलेगी 4.3746. When you will multiply this factor value of 4.375 by rupees 5,000, then you will obtain a compound value of 21,875. दैट मीन्स अगर आप हर साल 5,000 रुपये जमा कर रहे हैं साल के आखिर में, तो 4 साल बाद अगर आपका इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम लग रहा है तो आपकी अमाउंट की टोटल वैल्यू 21,875 हो जाएगी. ओके, सो दिस वॉज द एग्जाम्पल फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी. नेक्स्ट वी कम टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो. हमने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ा था,
which was present sorry हमने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ा था विच वॉज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻n. Okay, so when if we have to calculate now present value, then the formula will be present value is equals to future value upon 1 + r⁻n. वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा हुआ है. When you have to calculate the lump sum amount present value, then you will use this formula. P is equals to Fn upon 1 + i⁻n, जहाँ पे P का मतलब है present value, F is the future value at the nth number of year, 1 + I is the rate of interest and n is the number of years. तो यहाँ पे हमें साफ साफ समझ में आ रहा है, हमें मैथमेटिकल रिलेशनशिप समझ में आ रही है कि पहले हमारे फॉर्मूले में फ्यूचर वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी प्रेजेंट वैल्यू के और रेट ऑफ इंटरेस्ट के. तो जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इंटरेस्ट के और नंबर ऑफ ईयर्स के. और हमारा फॉर्मूला हो जाता है P is equals to Fn upon 1 + i⁻n, which can also be shown as F into 1 + i⁻n. जब हम -n को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू फ्रैक्शन में चली जाती है. नेक्स्ट, द टर्म इन पैरेंथेसिस इज द डिस्काउंट फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. ये जो वैल्यू है 1 + i⁻n, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्काउंट फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, एंड इट इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर पॉजिटिव i. तो जहाँ हमने फ्यूचर वैल्यू में ये स्टेटमेंट पढ़ा था कि जो कंपाउंड वैल्यू फैक्टर है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, प्रेजेंट वैल्यू के केस में जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होगी. तब आपका फॉर्मूला हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू F, दैट इज फ्यूचर वैल्यू, इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट n नंबर ऑफ ईयर्स एंड I रेट ऑफ इंटरेस्ट. So let's look at the example. Suppose that an investor wants to find out the present value of 50,000 to be received after 15 years. Her interest rate is 9%. First, we will find out the present value factor and then we will multiply with the amount. तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझते हैं. एक इन्वेस्टर ने अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट किए हैं और उस स्कीम में उसको 15 साल के बाद 50,000 रुपये मिलेंगे और उस स्कीम में उसको हर साल 9% का इंटरेस्ट रेट मिला है. तो 15 साल बाद उसको जो 50,000 मिलेगा उसकी एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, या आज के केस में उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है. तो सबसे पहले तो हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखेंगे. फैक्टर टेबल हमें मिलेगी, उसमें हमें वो वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी और फैक्टर टेबल में 15वें साल पे 9% पे जो फैक्टर वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है दैट इज 0.275. When you will multiply this 0.275 by 50,000, you will get the answer of 13,750. So this is your answer. अगर आप आज की डेट में 13,750 रुपये 9% इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे 15 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 15 साल बाद आपकी टोटल वैल्यू 50,000 हो जाएगी. Then next is present value of an annuity. So annuity की हम फिर से डेफिनेशन दोहरा देते हैं. Annuity is a amount which is either paid or received every year in equal amounts. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के केस में आपका फॉर्मूला होता है P is equals to A into 1/i minus 1/i into 1 + i⁻n. एंड दिस वैल्यू इन पैरेंथेसिस, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसे हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी कहते हैं. इसकी वैल्यू भी आपको फैक्टर टेबल में इजीली मिल जाती है. फॉर एग्जाम्पल,
If you have borrowed a 3-year loan of rupees 10,000 at 9% from your employer to buy a motorcycle, and your employer wants 3 equal installments at the end of every year, then what will be your annual installment? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपने अपने एम्प्लॉयर से 10,000 रुपये का लोन लिया है 3 सालों के लिए और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% लग रहा है, और आपके एम्प्लॉयर ये रिक्वायर करते हैं कि आप इस अमाउंट की पेमेंट इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में करें, तो वो इंस्टॉलमेंट क्या होगी, यानी कि एन्युटी अमाउंट आपका यहाँ पे क्या होगा? तो फॉर्मूला गिवन है यहाँ पे. 10,000 is the amount which you have taken, that is present value. A is the annuity amount and multiplied by present value factor of annuity at 3 years and 9%. तो जब आप फैक्टर टेबल कंसल्ट करेंगे, जब आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 की फैक्टर टेबल कंसल्ट करेंगे, तो आपको थर्ड ईयर में 9% पे वैल्यू मिलेगी 2.531. So when you will divide that value of 2.531 by 10,000, you will get the answer of 3,951. This is your annuity amount. यानी कि जो 10,000 का लोन आप इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 3 साल में पे करने वाले हैं, उसमें हर साल आपको 3,950 रुपये की इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी. ओके तो अभी तक आपने जो भी क्वेश्चंस पढ़े प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के, वहाँ पे आपने 2 कंडीशंस पढ़ी. फर्स्ट इज लमसम यानी कि सिंगल अमाउंट, और दूसरा है आपका एन्युटी यानी कि इक्वल पेमेंट्स और इक्वल रिसीट्स. बट अगर यहीं पे क्वेश्चन आपका अनइवन वैल्यूज़ का आ जाए, यानी कि हर साल आपको पैसा मिल रहा है बट वो सारी वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? So what we will do, in most instances, the firm receives a stream of uneven cash flows. Thus, the present value of annuity cannot be used. तो जब किसी केस में फर्म को अनइवन कैश फ्लोज मिल रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो एन्युटी का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं. Then the procedure is to calculate the present value of each cash flow and aggregate all present values. तब उस केस में उन सभी प्रेजेंट वैल्यूज़ को, ईच कैश फ्लो को सिंगल या लमसम अमाउंट की तरह ट्रीट करना पड़ता है और उनका एक एग्रीगेट आंसर यानी कि टोटल समेशन आंसर हम लेते हैं. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. Consider that an investor has an opportunity of receiving ₹1,000, 1,500, 800, 1,100 and 400 respectively at the end of 1 through 5 years. Find out the present value of this stream of uneven cash flows when the investor's required rate of return is 8%. तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको 5 अमाउंट दे रखे हैं. जो इन्वेस्टर है उसको पहले साल में 1,000, फिर 1,500, फिर 800, फिर 1,100 और फिर 400 रुपये मिलेंगे एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इन 5 years. तो यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू है स्ट्रीम की वो क्या है? अनइवन कैश फ्लोज है. 1,000, 1,500, 800, 1,100 एंड 400 डिनोट्स टू द अनइवन कैश फ्लोज. और इस ट्रांजैक्शन में रिक्वायर्ड इंटरेस्ट रेट आपका 8% है. तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इस टोटल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे हम सभी वैल्यूज़ का प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और टोटल अमाउंट को सेग्रीगेट कर देंगे. तो हमने यहाँ पे साफ साफ फॉर्मूला लगाया है. प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 1,000 अपॉन 1.08 प्लस 1,500 upon 1.08 power 2, then power 3 denoting the third year, then power 4 denoting the fourth year and power 5 denoting the fifth year. जब हम इन सभी की वैल्यूज़, आप इस इक्वेशन को कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपके पास नॉर्मल कैलकुलेटर भी है तो भी आप जब वैल्यूज़ इसको कैलकुलेट करेंगे, 1,000 को 1.08 से डिवाइड करेंगे, 1,500 को 1.08 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और कॉन्टिन्यूस करेंगे, तो आपका आंसर 3,927 आ जाएगा. उसके अलावा अगर आपको फैक्टर टेबल मिलती है एग्ज़ाम में करने के लिए और क्लास में भी अगर आप मैनेज कर पाते हैं, तो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ रख सकते हैं. 8% पे सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो भी आपका आंसर 3,927 ही आएगा. 8% पे पहले साल की वैल्यू,
फैक्टर वैल्यू 0.926 है, सेकेंड ईयर में 0.857 है, फिर 0.794 है, फोर्थ ईयर में 0.735 है एंड फिफ्थ ईयर में 0.681 है। और जब आप यहाँ पे भी सारे आंसर को एग्रीगेट करेंगे यानी कि समेशन करेंगे तो अभी आपका आंसर ₹3,927 ही आएगा। The next is the present value of perpetuity. What is perpetuity? Perpetuity is an entity that occurs indefinitely, and perpetuities are not very common in financial decision making. Perpetuity का जो इंग्लिश डेफिनेशन मीनिंग होता है इन्फानाइट, फॉर द इन्फानाइट टाइम। परपेचुइटी की इंग्लिश डेफिनेशन ये कहती है समथिंग दैट अकर्स फॉर इन्फानाइट टाइम अप टू द इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि परपेचुइटी वो मेथड है जहाँ पे आपको एन्युटी अमाउंट मिलता रहता है इनडेफिनिट पीरियड तक। ये परपेचुइटी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में। कभी कभी प्रेफरेंस शेयर्स में परपेचुइटीज़ का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज perpetuity upon interest rate. A very simple formula. Present value of perpetuity is equals to perpetuity upon interest rate. अब हम यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. Let us assume that investor expects a perpetual sum of ₹500 annually from his investment. What is the present value of his perpetuity if the interest rate is 10%? तो क्वेश्चन यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो इन्वेस्टर है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसे हर साल 500 रुपये का एनुअल इन्वेस्टमेंट मिले अपने इन्वेस्टमेंट पे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो उसको हर साल इन्फिनाइट टाइम पीरियड के लिए या इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए उसे अपने इन्वेस्टमेंट से हर साल 500 रुपये मिलते रहें और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 10% लग रहा है, तो उसका परपेचुटी अमाउंट कितना होगा? तो सिंपल है, परपेचुअल सम ऑफ ₹500 इन्वेस्टर को चाहिए, 10% इंटरेस्ट रेट है, तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 5000। यानी कि इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए, इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए करंट में इन्वेस्टर को ₹5000 का पेमेंट या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। The next is present values of growing annuities. तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो अमाउंट है वो बैंक में डिपॉजिटेड है और उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है लंबे समय के लिए। उस केस में फॉर्मूला क्या होगा? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एन्युटी इज एज फॉलोज: P is equals to A upon 1 minus G into 1 minus 1 plus G upon 1 plus I power n, where A is the annuity amount, P is the present value, I is the rate of interest, required rate of interest जो कि market rate of interest भी है, and G is the growth rate. यानी कि जिस रेट से, जिस ग्रोथ रेट से आपका अमाउंट इंक्रीज कर रहा है उसे हम G से डिनोट करेंगे. So, the present value of a constantly growing perpetuity is given by simple formula as P is equals to A upon 1 I minus G, where P is the present value, A is the annuity amount, I is the required rate of return, and G is the growth rate. So let's here take a look at the example also. If you assume that you earn a salary of 1000 rupees with the provision that you will get annual increment of 10% per year, it means that you shall get following amounts from year 1 to year 5. तो ग्रोइंग एनुटीज़ के केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि हर साल जो हमें जो भी अमाउंट मिल रहा है उसमें एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट होगा. ओके, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि अगर एक एम्प्लॉय को 1000 रुपीज़ सैलरी मिल रही है और उसके प्रोविजन में, उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हर साल उसमें 10% का इंक्रीमेंट होगा, तो 5 साल बाद उसकी सैलरी कितनी होगी? तो लेट्स टेक अ लुक एट एग्जांपल. पहले साल में उसकी सैलरी 1000 रुपये रहेगी, तो यहाँ पे 10% का
ज़ीरो पावर लगेगा क्योंकि ये पहला साल है, दिस इज़ द ओपनिंग ईयर। फिर सेकेंड ईयर में 1000 में उसका 10% का इंक्रीमेंट लगेगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी 1100। फिर नेक्स्ट ईयर में 1100 रुपीज़ में आप 10% का इंक्रीमेंट फिर से करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1210 रुपीज़। फिर फोर्थ ईयर में जाके आप 1210 रुपये में जब फिर से 10% का इंक्रीमेंट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1331। एंड फिफ्थ ईयर में जब सैलरी 1331 चल रही है और उसमें जब 10% का इंक्रीमेंट किया जाएगा तो वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1464। सो दिस इज़ द केस ऑफ ग्रोइंग एनुटीज़, जहाँ पे जिस किसी कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम है या कोई आपकी सैलरी स्कीम है जहाँ पे आपको ये वादा किया जा रहा है दैट द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज ग्रेजुअली every year over a period of time on fixed rate of interest. Then there's formula of value of annuity due. I'll repeat again. The next formula is of value of annuity due. Annuity due is the series of fixed receipts or payments starting at the beginning of each period for a specified number of periods. Annuity due का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और वो स्कीम आपसे ये कहती है कि आपको हर साल यानी कि हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में आपको कुछ अमाउंट मिलेगा इस स्कीम में से, तो उसे हम कहते हैं एन्युटी ड्यू। या फिर अगर आपने कोई ऐसी स्कीम ली है कि अगर इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में आप हर साल इतना पैसा जमा करते हैं तो सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद आपको इतना टोटल मनी मिलेगा, तो वो केस भी होता है आपका एन्युटी ड्यू का। वैसे भी हमने एन्युटी की डेफिनेशन पढ़ी ही है दैट एन्युटी इज द सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स और रिसीट्स मेड। तो जब फ्यूचर वैल्यू की बात आती है तो आपका फॉर्मूला होगा F is equals to A into compound value factor of annuity in n number of years and I rate of interest into 1 plus I, where I is the rate of interest. And when it is the case of present value of annuity due, then the formula will be P is equals to A into present value factor of annuity at n number of years and I rate of return into 1 plus I. तो फ्यूचर वैल्यू के केस में आप कंपाउंड वैल्यू फैक्टर की टेबल रीड करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू के केस में आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी की टेबल रीड करेंगे। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। When you deposit ₹1 at the end of each year, the compound value at the end of 4 years is 4.375. How? यहाँ पे हमने ये assume किया है that the rate of interest here is 6% per annum. तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप हर साल 1 रुपये जमा कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, तो 4 साल बाद आपका अमाउंट टोटल अमाउंट कितना होगा अगर आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो पहले साल में आप 6% का इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे साल में जो पैसा जमा करेंगे वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तीसरे साल में जो पैसा जमा करेंगे वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा और पहले लास्ट ईयर में जो पैसा जमा करेंगे वो सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई होगा। तो उसकी टोटल वैल्यू 4.637 आ जाएगी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट the numerical portion of the chapter of time value of money. Here I want to repeat to all of you that time value of money is a very important topic. मैं ये चीज़ बार बार आप लोगों को बताऊंगी, बार बार याद दिलाऊंगी कि आपके सिलेबस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस में यूनिट 1 का जो चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। इससे 3 या 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, बल्कि उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे, इसके बेसिक फार्मूला पे ही आपके कैपिटल बस्टिंग के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट होंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट होंगे। So that is why time value of money is a very important chapter and you need to understand it
very properly. So, this is your faculty Ritu Singh. I have taught you the chapter, numerical chapter for time value of money here. If you have any further questions, you can ask me. You can come to me, you can approach me, or you can send your queries on my email ID also. My email ID is available on college website. So thank you so much, student, listening to this chapter very carefully and patiently. And I would like to welcome all the queries from all of you. I am here to solve all of your queries regarding numericals. So thank you so much, students, for listening. We'll meet in the next class. Have a nice day ahead.